Case studies on GPCs part 2. Question number 7. A 32-year-old male was admitted to hospital with fever, chills and generalized body pain. The patient had received multiple courses of antibiotics earlier for the same. Blood culture showed gram-positive cocci. The cocci could grow in the presence of 40% bile and 6.5% sodium chloride. Which bacteria are they? नाउ ये पेशेंट में ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्रो किया इतना तो बता दिया, यानी कि इट कैन बी स्टैफ, स्ट्रेप्टो और न्यूमो, कोई भी, ठीक है। अब उसमें 40% बाइल में ग्रो कर सकता है ऐसा बताया है और 6.5% सोडियम क्लोराइड में ग्रो कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पेक्यूलियरली एंट्रोकोकस की होती हैं। एंट्रोकोकस कैन ग्रो इन हाई सॉल्ट, हाई बाइल, हाई टेम्परेचर, ऑल दिस कंडीशन। 45 डिग्रीज पे ग्रो कर सकता है, 40% बाइल में ग्रो कर सकता है, 6.5% सोडियम क्लोराइड में ग्रो कर सकता है। तो ये सब कंडीशंस में सभी स्ट्रेप्टोकोकस में एंट्रोकोकस की ये प्रॉपर्टी है कि दैट इट कैन ग्रो इन ऑल दिस हाई बाइल, हाई सॉल्ट एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस। So the correct answer here is B, Enterococcus. These are peculiar properties of Enterococcus, so they are directly hinting towards Enterococcus. So you need not think much about other options. All right. Next question is question number 8. A 75-year-old man is brought by his daughter to the community health center. He appears confused and has stiff neck and severe headache. She indicates that the previous week he had a runny nose and other symptoms consistent with sinusitis. What organism would you expect to find in his cerebrospinal fluid? ये एक 75-year-old यानी कि एजेड पर्सन, उसको स्टिफ नेक और सीवियर हेडेक है और कंफ्यूज्ड है। तो कन्फ्यूजन है, स्टिफ नेक है और सीवियर हेडेक है, ऑल दिस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो एक एजेड पर्सन में मेनिंजाइटिस का केस, और प्रीवियस वीक उसको रनी नोज था, साइनोसाइटिस के प्रॉपर्टीज़ थे। तो साइनोसाइटिस के बाद 1 वीक बाद मेनिंजाइटिस हुआ, तो यानी कि साइनोसाइटिस करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो नोज से ब्रेन में चला गया और वहाँ पे उसने मेनिंजाइटिस किया। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ साइनोसाइटिस इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. Streptococcus pneumoniae is the commonest cause of sinusitis, and post sinusitis person can develop meningitis after some days. And so here in the cerebrospinal fluid, the most likely organism to be found is Streptococcus pneumoniae. Option D, Streptococcus pneumoniae, is the right answer. Here mice has been shown in the figure. Actually it is an indirect hint. For inoculation of pneumococcus, experimental animal used is mice. So this photograph has been kept as an indirect hint towards the answer. Question number 9. An 18-month-old female infant is brought to the emergency room by her mother. The mother reports an abrupt onset of symptoms consisting of continual crying, high fever and a cough producing rusty colored sputum. What would you expect a chest x-ray and lab findings to show? एक चाइल्ड है 18 months old, उसमें हाई फीवर, कफ ये सब है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको रस्टी कलर्ड स्पुटम है। ये निमोनिया का फीचर्स बता रहे हैं ये। और रस्टी स्पुटम इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस के निमोनिया में ऐसा होता है, रस्टी कलर्ड स्पुटम। और हियर दिस इज अ केस ऑफ लोबार निमोनिया, क्योंकि न्यूमोकोकस कॉजेज लोबार निमोनिया. So the correct option here will be A, lobar pattern and gram positive cocci. Gram positive cocci pneumococcus और lobar pattern, lobar pneumonia. ठीक है, it is not bronchopneumonia and it is not gram negative cocci causing lobar pattern, but it is gram positive cocci causing lobar pattern. So the correct option here is A.
Question number 10. From the tracheal aspirate of a child with lower respiratory tract infection, pure growth of alpha hemolytic colonies was obtained. They were gram-positive, capsulated, lanceolate diplococci. The organism is most likely to have following features except. तो ट्रैकेल एस्पिरेट में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अल्फा हेमोलाइटिक कोकाई आया। वो ग्राम पॉजिटिव थे, कैप्सुलेटेड और लैंसुलेट शेप्ड। तो लैंसुलेट शेप इज़ ए पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूमोकोकस, वो उसका पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, इसीलिए दिस इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टूवर्ड्स न्यूमोकोकस। ठीक है, अब द ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू हैव फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से 4 में से 3 प्रॉपर्टीज़ न्यूमोकोकस की होगी और एक उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो लेट्स हैव ए लुक एट द प्रॉपर्टीज़। पहला ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, तो न्यूमोकोकस इज ऑप्टोचिन सेंसिटिव, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सॉल्युबल सब्सटेंस SSS, उसकी जो कैप्सूल है वो डिज़ोल्व हो जाती है टिश्यू फ्लूइड्स में, इसलिए उसको स्पेसिफिक सॉल्युबल सब्सटेंस का नाम दिया गया है SSS। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है न्यूमोकोकस की। फिर C है बाइल सॉल्युबिलिटी, तो न्यूमोकोकस इज़ बाइल सॉल्युबल। और D है बीटा हेमोलाइटिक, तो न्यूमोकोकस अल्फा हेमोलाइटिक है, बीटा हेमोलाइटिक नहीं है। सो 3 फीचर्स उसके हैं और एक उसका नहीं है फीचर। तो जो फीचर उसका नहीं है दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर D, बीटा हेमोलाइटिक। Question number 11. An 83-year-old who still lives in her own home has developed pneumonia following influenza. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के बाद उसको बैक्टीरियल निमोनिया हो गया। The gram stain of her sputa shows gram-positive diplococci. Gram-positive diplococci. What is the causative agent? तो gram-positive diplococci hints towards streptococcus pneumoniae. एंड एजेड पर्सनस में वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसमें न्यूमोकोकस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। उसमें एल्डरली आ गए, फिर स्प्लीनेक्टोमी वाले, एस्प्लीनिया वाले केसेस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले केसेस, कैंसर थेरेपी वाले, ट्रांसप्लांटेशन वाले, ये सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में न्यूमोकोकस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया। So the correct answer here is option A, Streptococcus pneumoniae. Question number 12. A 78-year-old man develops a high fever, cough producing a blood-tinged sputum and difficulty breathing. Sputum shows organism consistent with Streptococcus pneumoniae. What is the most important virulence factor? इधर इन्होंने बता दिया है कि pneumococcus is the cause of pneumonia here. ये elderly patient है, उसमें न्यूमोकोकस हैज़ कॉज निमोनिया। अब उसका विरुलेंस फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ, तो एंडोटॉक्सिन, वो उसका सेल वॉल में। फॉस्फोलिपेज अलाउिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया टू एस्केप द फैगोसोम क्विकली। थर्ड सेल वॉल। और फोर्थ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। एंडोटॉक्सिन तो जनरली ग्राम नेगेटिव्स में होता है, बराबर। बाकी सेल वॉल और फॉस्फोलाइपेज ये कोई इम्पोर्टेंट, मतलब उतने इम्पोर्टेंट एंटीजन्स नहीं हुए। सबसे इम्पोर्टेंट एंटीजन हुआ उसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। वो कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, उसको फैगोसाइटोसिस से बचाता है, सो द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर इज ऑप्शन डी, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 13. A 6-year-old child was admitted to hospital with high-grade fever, headache, stiff neck, lethargy, vomiting and altered sensorium for 3 days. Gram staining of the CSF showed gram-positive diplococci. The same bacteria was isolated in culture. What is the most likely bacteria to cause this condition? 6-year-old child, high-grade fever, headache, stiff neck, lethargy, vomiting, altered sensorium, any meningitis. ग्राम स्टेनिंग ऑफ CSF शोड ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई, तो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है तो न्यूमोकोकस हो सकता है। दूसरे भी होते हैं ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई, लेकिन वो एक कॉमन ऑप्शन होता है। द सेम बैक्टीरिया वाज आइसोलेटेड इन कल्चर। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली बैक्टीरिया टू कॉज दिस कंडीशन? तो मेनिंजोकोकस नहीं हुआ, वो तो ग्राम नेगेटिव होता है।
पायोजिनस वो चेन में रहता है, जनरली डिप्लोकोकल फॉर्म उसका प्रोमिनेंट फॉर्म नहीं है। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस तो क्लस्टर में होता है। तो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई वाला प्रेजेंटेशन आ गया ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज न्यूमोकोकस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, न्यूमोकोकस। And that completes session 2. Thank you.